हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम यमुना मस्करी। सो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कनेक्शंस। लेट रिवाइज सम कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली, विच इज रेजिस्टेंस। एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which oppose the flow of electron or current, and it is denoted by R, and SI unit is ohm, and we know that R equals to rho L by A. Let's talk about type of connection. First is series connections. Okay, this is series connection diagram. In series connection, resistance are connected one after another such a way that they forming a single closed loop or closed path for flow of करंट। इन सिंपल लैंग्वेज देखिए, रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल होते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग। सो रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि एंडिंग टर्मिनल ऑफ R1 इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ R2, एंडिंग टर्मिनल ऑफ R2 कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग टर्मिनल ऑफ R3। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। सो R1 में जो भी करंट फ्लो होगा वो R2 से भी होगा, वही R3 से भी होगा, क्योंकि हमारे सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ एक सिंगल पाथ प्रोवाइड होता है सीरीज कनेक्शन में। सो द करंट इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर और ईच एलिमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इट मीन्स आपके पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। सो इन सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर और रेजिस्टेंस वैल्यू। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस Rn up to Rn. Next point is the total resistance of a series circuit is always greater than individual value of the highest resistance. It means let's understand by example. देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन है, जैसे सर्किट में दिया है R1 is equals to 10 ohm, R2 is equals to 5 ohm and R3 is equals to 15 ohm, and these resistors are connected in series. So हमारा statement क्या है? The total resistance of series circuit is always greater than individual value of the highest resistance. So जब हम R equivalent निकालेंगे इस सर्किट का, so कितना होगा? R1 plus R2 plus R3, 10 plus 5 plus 15, which is R equivalent is equals to 30 ohm, and we know that in series connection R3 is equals to 15 ohm is the highest individual value of resistance. So R equivalent is always greater than R highest in series connections. Next point is in series circuit, if n number of resistance each of same value are connected in series, then total resistance is equals to the R multiplied by n. R is the value of resistance and n is the number of resistor. Let's understand by example. If each resistor is 10 ohm and there are 4 resistors connected in series, then total resistance is, so we know that R equivalent is equals to N into R. So N is equals to 4 and value of resistance is 10. So R equivalent is equals to 40 ohm. Let's understand by conventional method. We know that in series connection R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 because we have 4 resistors. So R equivalent is equals to 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equals to 40 ohm. Okay, so next point is the total voltage drop across the circuit is the sum of the voltage drop across each resistors. So voltage of supply voltage is equals to voltage drop across resistance R1 plus voltage drop across resistance R2. Next is parallel connection. This is parallel connection diagram. In parallel connection, two or more resistance are connected between two common points,
and creates multiple paths for current to flow. We know that in series connection we have only one path for flow of current, but in this parallel connection we have multiple paths for flow of current. The voltage across each element or each resistance is same because all resistors are connected between 2 points. That's why each resistor or element having the same voltage across it. If we talk about total equivalent resistance, then resistance is calculated by taking the reciprocal of the sum of the individual resistance. So R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. For n number of resistance, R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by dash up to 1 by Rn. The total resistance in parallel circuit is always less than the smallest individual resistance. I know it's difficult to understand, so let's clear from the example. ठीक है, देखिए जो 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं कनेक्टेड इन पैरेलल, R1 is equals to 2 ohm, R2 is equals to 4 ohm and R3 is equals to 6 ohm. So हमें फाइंड करना है टोटल इक्विवेलेंट. सो हमें पता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. सो जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे, सो वी गॉट 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6. इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय एलसीएम. अगर एलसीएम लेना है तो हमें डिनोमिनेटर में क्या होने चाहिए, हमारे 12 होने चाहिए. सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा जो R1 बाय आर इक्विवेलेंट आएगा वो 11 बाय 12 आएगा. सो हमें 1 बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, आर इक्विवेलेंट की चाहिए. इसीलिए इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में. सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1.09 ओहम. सो देखिए जो 1.09 ओहम है, इट इज लोअर देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पैरेलल कनेक्शंस. देखिए R1 की वैल्यू 2 ओहम है, जो कि लोवेस्ट वैल्यू है इस कनेक्शन की, इस कनेक्शन डायग्राम की. और जो आपका R इक्विवेलेंट आया है वो 2 से भी कम है. नेक्स्ट, इन पैरेलल सर्किट, इफ n resistor each of R are connected in parallel, then total resistance is equals to R by N. इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से. इफ 5 रजिस्टर, इट मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 5 है, ऑफ 10 ओहम, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओहम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल रेजिस्टेंस. अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, क्योंकि हमारे रेजिस्टर्स कितने हैं, 5 हैं. जब आप वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 आप रेजिस्टेंस 5 तक पुट करते हैं. वी नो दैट कि बेस सेम है तो हमें यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो. तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 10. अब हमें 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट. सो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर चेंज हो जाएगी. सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, 2 ओहम. और अगर हम इस डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जाते हैं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन. तो आर हमारा क्या है, 10 ओहम, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं हमारे पास, 5. सो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट हमें 2 ओहम मिल जाता है अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दी हुई हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं, द टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स इज द सम ऑफ द करंट थ्रू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो भी सोर्स से करंट सप्लाई हो रहा है वो एडिशन होगा ब्रांच फर्स्ट से फ्लो होने वाला करंट प्लस ब्रांच 2 से फ्लो होने वाला करंट प्लस ब्रांच 3 से फ्लो होने वाला करंट. इस तरीके से आई टोटल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. और जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे. ठीक है, एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. अगर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है जो हम नॉर्मली याद कर लेते हैं कि R1
आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सो ये कैसे आता है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। R1 इज इक्वल्स टू 6 ओहम दिया हुआ है, R2 इज इक्वल्स टू 3 ओहम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो वही हमारा कन्वेंशनल मेथड, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट करने पे हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ना लेके इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो ये क्या हो जाएगा, R2 मल्टीप्लाई बाय R1। तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 मल्टीप्लाई बाय R2। सो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर इक्विवेलेंट की। सो फिर से क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर हमें चेंज करना पड़ेगा। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये अगर हमें सिर्फ 2 रेजिस्टेंस दिया होगा तो हम सिंपली इस फॉर्मूले से रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमें पता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला मिल गया, R1 कितना है 6, R2 कितना है 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3। सो हमें कितना मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 18 बाय 9। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 ओहम। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।